Yes, welcome to the session of Jury Ducks. We'll be starting with a new head, a new chapter that is all about execution. Now, what is execution? Before coming to the core discussion of this topic of execution, let us try to understand by an illustration. Suppose take the example if the plaintiff has given a loan amount of rupees 5 lakhs to the defendant, then obviously take the example plaintiff को लिख लो Mr. X versus Mr. Y for the time being. So Mr. X versus Mr. Y. On a certain day, Mr. X has given a loan to Mr. Y amounting to rupees 5 lakh. Now, Mr. Y is under an obligation to pay the amount of rupees 5 lakh together with the interest within a certain point of time as both the parties have agreed as per the terms and conditions of the agreement. Now, if there is a violation, there is a contravention of the agreement made by the defendant, that is here in this case Mr. Y, Mr. X will have no option rather to file a civil case before the court. So वैसे ही Mr. X plaintiff इस केस में और डिफेंडेंट मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के अगेंस्ट में सिविल कोर्ट में एक एलिगेशंस लेकर आया दैट ऑन अ सर्टेन डेट आई हैव गिवन अ लोन अमाउंट ऑफ रुपीज 5 lakhs to the defendant. Now, obviously, it is a duty bound and an obligation upon the defendant to return the money together with the interest. But on account of the violation of the terms and conditions done by Mr. Y, Mr. X was forced to bring a civil suit against Mr. Y. So Mr. X has now approached before the court for a decree. Now, after a delay in judicial proceedings, what happens actually? A lengthy procedure. After 10 years, suppose the decree was passed in the favor of plaintiff, wherein this plaintiff is Mr. X, and the court has given an order in favor of Mr. X that Mr. Y should pay the loan amount together with the outstanding interest and also the litigation cost which has been incurred by the plaintiff. Here Mr. Y has been directed by the court to return the amount which was previously taken together with other interest and damages cost to the plaintiff. Now, if the court has given a decree to pay the amount within a certain point of time, do you think that Mr. Y will easily pay the amount by virtue or complying the decree? If Mr. X, the defendant, has complied as per the terms of the decree, then obviously there is no question of execution. Now, if plaintiff is now the decree holder in this case, as the decree was passed in favor of Mr. X, but Mr. X is unable to realize the decree. इसका मतलब क्या है? डिक्री तुम्हारा फेवर में गया, क्या मिस्टर एक्स आपको पैसा दे देगा इस टाइम के अंदर, बट मिस्टर वाई इज नॉट पेइंग, मिस्टर वाई इज नॉट पेइंग द अमाउंट इवन आफ्टर द डिक्री हैज बीन पास्ड, देन व्हाट रिकोर्स मिस्टर एक्स कैन टेक? डिक्री होने का बाद भी मिस्टर वाई वो पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है. सो व्हाट रिकोर्स, व्हाट स्टेप्स मिस्टर एक्स कैन टेक? मिस्टर एक्स कैन execute the decree. Mr. X can execute the decree. Now, what does execution means and what is executing the decree? देखो, डिक्री तो कोर्ट आपको दे दिया और वो भी आपका फेवर में, बट उस डिक्री को रियलाइज करने के लिए आपको एनफोर्समेंट करना पड़ेगा. व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू एनफोर्स द डिक्री. You have to enforce the decree, and that enforcement can be done by a court which has passed the decree. जो कोर्ट ने ये डिक्री पास किया उधर में ये भी आप एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो. आप इस कोर्ट को बोल रहे हो क्या कि कोर्ट ने मेरे फेवर में ऑर्डर दिया
despite of the decree, despite of the orders and decrees given in my favor, Mr. Y is such a person that 100% surety he will not comply with the order. तो मिस्टर एक्स को लग गया क्या मिस्टर वाई सीधा आदमी नहीं है जो डिक्री को मान के वो पैसा वापस कर देगा. सो विदाउट फर्दर taking some new ideas, the decree can be executed by Mr. X before that proper court or before any other court which has the power of execution. So today's discussion is all about execution of proceedings. I will discuss with the relevant sections and also the orders and rules pertaining to the execution of proceedings. So जब आपको इस डिक्री को रियलाइज करने के लिए आपको फर्दर कुछ एप्लीकेशंस करना होता है तो वो होता है एग्जीक्यूशन. भला ही आपके फेवर में डिक्री दे दिया बट डिफेंडेंट तो नहीं सुनने वाला आदमी नहीं है, वो ठीक ठाक सुनने वाला आदमी नहीं है, तो उसके अगेंस्ट में आपको एग्जीक्यूशंस करना ही होगा. सो व्हाट इज एक्चुअली एग्जीक्यूशन? एग्जीक्यूशन इज जस्ट एनफोर्समेंट ऑफ द डिक्री. नाउ जब एग्जीक्यूशन मामला होता है इट कैन बी सेड दैट इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सूट. देखो सूट चालू हुआ था, मैटर मान लो सूट was filed before the court in the year 1/1/2006. The court has given a decree in favor of the plaintiff 3/9/2020. देखो 2006 में केस फाइल हुआ था और 2020 में डिक्री दिया. किसके फेवर में डिक्री दिया? प्लेंटिफ के फेवर में डिक्री दिया. अभी मान लो जो डिक्री दिया उसका हिसाब से डिफेंडेंट मान लो कंप्लाई किया, कंप्लायंस किया, तो एग्जीक्यूशन का बात नहीं आता है उसके बाद. बट इफ द डिक्री इवन इफ इट हैज बीन गिवन इन फेवर ऑफ द डिक्री होल्डर बट द डिक्री हैज टू बी रियलाइज्ड. डिक्री को रियलाइजेशन करना है. हाउ टू रियलाइज? अभी रियलाइजेशन करने के लिए देयर आर वेरियस मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन. जब आप सीधा आदमी नहीं हो, जब आप सुनने वाला नहीं हो, तो कोर्ट के पास कुछ दूसरे तरीका है, आपके पास भी कुछ दूसरे तरीका है उसको जबरदस्ती सुनाने के लिए. सो व्हेन अ पर्सन हु इज नॉट ओबेइंग द डिक्री, व्हेन अ पर्सन इज मेकिंग डिसोबेंस ऑफ द डिक्री, देन इन दैट केस एनफोर्समेंट प्रोसीडिंग्स कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट दैट जजमेंट डेटर. जब एग्जीक्यूशन फाइल होता है सो द मैटर इज नोन एज टाइटल एग्जीक्यूशन. टाइटल एग्जीक्यूशन. अभी आप बोल सकते हो ये टाइटल एग्जीक्यूशन कैसे शुरू हुआ है? ये टाइटल सूट से ही ये एग्जीक्यूशन अराइज हुआ है. सूट का आगे कभी एग्जीक्यूशन नहीं होता है. सूट पहले फाइल होता है, उसके साथ साथ डिक्री मिलता है और उस डिक्री से डिक्री को सेटिस्फैक्शन करने के लिए प्लेंटिफ कैन फर्दर टेक अ स्टेप दैट इज एग्जीक्यूशन. दैट इज एग्जीक्यूशन. सो सेक्शन 38 ऑफ द कोड, सेक्शन 38 ऑफ सीपीसी states that a decree may be executed either by the court which passed the decree or by the court to which the decree is sent for execution. जो कोर्ट ने डिक्री पास किया उस कोर्ट का तो पावर है एग्जीक्यूशन करने का. जैसे मान लो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को 5 लाख रुपया दिया बट पैसा वापस नहीं किया मिस्टर वाई. मिस्टर एक्स ने सिविल सूट फाइल किया किसके अगेंस्ट में? मिस्टर वाई के अगेंस्ट में, और उन्होंने डिक्री भी ऑब्टेन किया दैट मिस्टर वाई इज डायरेक्टेड टू पे द अमाउंट ऑन सच डेट. अभी इस डिक्री तो कोर्ट ने दिया बट डिक्री का कैसे आप रियलाइज करोगे? क्योंकि वो तो सीधा आदमी नहीं है, वो तो पैसा आपको सीधा तरीके से नहीं देगा. That person will not comply the decree. If he complies the decree, then obviously that the defendant will return the money on a particular time. Now, if that person does not return, then what can you do? You can file an execution proceedings against that defendant, but अभी एक दूसरा एप्लीकेशन फाइल हो रहा है and that application is extended to the suit only. सूट का पीछे ही आप एग्जीक्यूशन कर सकते हो बट डिक्री जब तक आपको नहीं मिलेगा आप एग्जीक्यूशन नहीं कर पाओगे. सो जब एक केस होता है, सिविल सूट होता है, तो उसमें तो डिक्री मिलना है.
तो डिक्री जब तक आपको नहीं मिलता है आप एग्जीक्यूशन कर भी नहीं पाओगे. सो वंस यू ऑब्टेन द डिक्री, फॉर रियलाइजेशन ऑफ द डिक्री you can start with the execution proceedings against the same defendant but in the name of judgment debtor. तो जब टाइटल एग्जीक्यूशन फाइल होता है तो पार्टी का नाम हो जाता है एक डिक्री होल्डर और एक बन जाता है जिसके अगेंस्ट में होता है वो बन जाता है जजमेंट डेटर. सो इधर में जजमेंट डेटर कौन है सर? द डिफेंडेंट ऑब्वियसली. तो मिस्टर वाई के अगेंस्ट में आप एग्जीक्यूशन फाइल कर रहे हो. सो मिस्टर एक्स हियर इज द डिक्री होल्डर हु इज फाइलिंग एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द जजमेंट डेटर इन ऑर्डर फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द पर्टिकुलर डिक्री. देखो एग्जीक्यूशन कोर्ट हैज द पावर टू एग्जीक्यूट द डिक्री. आप जब सीधे तरीके से पैसा नहीं वापस कर रहे हो तो आपका प्रॉपर्टी क्या हो सकता है? अटैचमेंट कर सकते हैं, आपको अरेस्ट भी कर सकते हैं. सो एग्जीक्यूशन इज समथिंग which is considered to be one of the important role played by the civil court. एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में जो एग्जीक्यूट करता है डिक्री, कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन वही है सिविल कोर्ट का. सो यू कैन से दैट एग्जीक्यूशन इज अ पावर which is given to a principal civil court for the purpose of satisfaction of the decree. डिक्री तो आपको मिल गया बट डिक्री को सेटिस्फाई करना है तो पैसा तो उसको देना ही पड़ेगा कैसे भी. बट जब वो सीधा तरीके से नहीं देते हैं आप एग्जीक्यूशन करके उस डिक्री को एग्जीक्यूट करके वही कोर्ट में नहीं तो कोई अदर कोर्ट में जहां जुरिस्डिक्शन बनता है आप एग्जीक्यूशन कर सकते हो और आपका डिक्री का जो फाइनलिटी है, डिक्री का जो सेटिस्फैक्शन है वो सक्सेसफुल होगा आफ्टर यू फाइल एग्जीक्यूशन. अभी बात यही है सर वेदर इट इज नेसेसरी टू फाइल एग्जीक्यूशन application in every type of civil cases? No, it is not mandatory. If a civil court has given a final decree and by virtue of that final decree, if the defendant complies whatever has been said by the court, then obviously I think the defendant is a gentleman. The defendant has complied with the decree of the court. But if not, then ultimate resort you can take, that is in civil case I am saying, in civil court, that is executions. You can execute the decree. An execution court can execute the decree by various modes. We'll discuss with the modes and later on see whether such execution proceedings gives finality to the suit, gives a final decision to the suit or not. क्या एग्जीक्यूशन कोर्ट ऑर्डर पास करता है? क्या एग्जीक्यूशन कोर्ट डिक्री पास करता है? देखो ये पहले आपको ये बात क्लियर करना है. एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन इज नॉट अ सूट, इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ सूट. Execution application is not a suit but it is a continuation of a suit. So when you are filing an execution application against the judgment debtor before a particular court, the court is empowered to give you order but not decree. डिक्री आपको कहां मिलेगा? ओनली इन सूट. डिक्री टू टाइप्स हमने देखा है, प्रिलिमिनरी फाइनल. तो वो जो प्रिलिमिनरी फाइनल इसके बीच में एग्जीक्यूशन नहीं होता है बिकॉज एग्जीक्यूशन में आपको डिक्री नहीं मिलता है, एग्जीक्यूशन में आपको ऑर्डर मिलता है और सूट में आपको डिक्री मिलता है. तो ये बात पहले से आपको क्लियर कर दे रहा हूं. एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में कोर्ट जो प्रोनाउंस करेगा दैट इज एन ऑर्डर एंड नॉट अ डिक्री. बट व्हाइल डिटरमाइनिंग द रियल कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज टू अ सूट, the court can pass a decree. Sir, whether the execution court determine the questions which has been previously determined in the suit, yes it can. Section 47 में बोला गया कि the execution court can deal with the questions which has been raised in the suit, but जो डिक्री दिया है उस डिक्री को वो मॉडिफाई नहीं कर सकता है. एक्सेप्शन में कुछ जगह है, कर सकता है, बट जनरली स्पीकिंग वन एग्जीक्यूशन कोर्ट और अ एग्जीक्यूशन कोर्ट cannot annul the decree which has been previously passed by the lower court or by the trial court. जो ट्रायल कोर्ट ने डिक्री दिया है वो एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन के हिसाब से उसको आप नलीफाई, उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो.
एक्सेप्शन जगह है, बाद में विल सी. सो सेक्शन 38 ऑफ द कोड इज ऑल अबाउट दिस, how a decree has to be executed, which court executes the decree. Next, section 37 is saying that court which passed a decree. Now by the definition of section 37, definition of court which passed a decree, अभी बात थोड़ा कंट्रोवर्सी में आता है. जैसे मान लो, टेक एन एग्जांपल, इसको थोड़ा पहले इरेज कर दो. आई थिंक यू ऑल हैव कॉपीड दिस. टेक एन एग्जांपल, इफ a plaintiff has filed a suit against the defendant. Take an example, learned civil judge junior division में एक टाइटल सूट चल रहा था. उसका नंबर है 79 ऑफ 2020 का एक मैटर चल रहा था, और उस मैटर को कोर्ट ने डिक्री दे दिया. वो केस क्या था? रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ मनी, पैसा का बारे में, पेमेंट ऑफ मनी. डिक्री इज इन फेवर ऑफ द डिक्री होल्डर. नाउ द क्वेश्चन कम्स, विच विल बी द बेटर प्लेस फॉर फाइलिंग द एग्जीक्यूशन. मान लो कोर्ट ने डिक्री दे दिया कि आप पैसा वापस करो, और इतना ऐसा पैसा वापस करो, इतना टाइम में वापस करो, सब कुछ डिक्री में दे दिया. बट डिक्री दे दिया, इसका मतलब डिफेंडेंट उसको सीधा तरीके से पैसा नहीं देगा. इसका मतलब सर कुछ तो और भी आगे जाना है, उस डिक्री को सेटिस्फैक्शन कैसे भी करना है. सो द कोर्ट व्हिच हैज पास्ड द डिक्री हैज द पावर टू एग्जीक्यूट दैट सेम डिक्री. द कोर्ट व्हिच हैज पास्ड द डिक्री हैज द पावर टू एग्जीक्यूट द सेम डिक्री. द आंसर इज यस. जो कोर्ट ने डिक्री पास किया वही कोर्ट में इट्स बेटर इफ यू गो फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेम. सर कोई दूसरा कोर्ट कर सकता है? वैसे मान लो, सपोज टेक एन एग्जांपल, जो डिफेंडेंट है उसका कुछ प्रॉपर्टी, मान लो ये जहां केस फाइल हुआ, मान लो ये दुर्गापुर है, लर्नेड सिविल जज दुर्गापुर में है, चलो ये मामला किया है. बट जो डिफेंडेंट है उसका प्रॉपर्टी वगैरह आसानसोल में है. सो कैन द डिक्री बी एग्जीक्यूटेड in Asansol in any learned civil judge junior division? learned civil judge junior division दुर्गापुर कोर्ट में एक डिक्री पास हुआ, क्या वो डिक्री आप आसानसोल में एग्जीक्यूट कर सकते हो? ऐसा क्या आपको खबर मिला क्या? इन आसानसोल द डिफेंडेंट इज हैविंग सम प्रॉपर्टी and that property can be attached. So whether it will be better for the plaintiff here in the decree holder to file the execution in Asansol rather filing in Durgapur. मेरा कहने से ये होगा क्या, if the defendant is having a property, जब आप एग्जीक्यूशन करते हो वो तो जजमेंट डेटर बन जाता है. So once you file the execution, the defendant will turn to judgment debtor और plaintiff बन जाएगा judgment creditor, नहीं तो decree holder बोल सकते हो. So the decree holder has now an option. He can file the execution application either in the court which has passed the decree or in any other jurisdiction where the defendant is carrying any business, where the defendant is working personally for gain, where the defendant is having any property. क्यों? Because एग्जीक्यूशन में एक तरीका होता है जो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. आपको मालूम हो गया कि वो पैसा देने वाला नहीं है, तो आप जिस कोर्ट ने डिक्री पास किया उधर एग्जीक्यूशन मत करो. बट कहां करो सर? उधर ही करो जहां उसका प्रॉपर्टी है. तो मेरा ख्याल से आसानसोल में जजमेंट डेटर का प्रॉपर्टी है, तो उधर में अटैचमेंट करने का भी जो अटैचमेंट करने का जो प्रोसीडिंग्स होता है that will be much more fast as compared to if it is filed in Durgapur. So execution एक ऑप्शन होता है, आप उस कोर्ट में भी फाइल कर सकते हो और any other court where the judgment debtor is found to be residing, where the judgment is found to be having any property, where the judgment debtor is carrying any business or personally working for gain. तो jurisdiction बनता ही है, because we have done in the chapter of jurisdiction of civil courts. आप लोग किया था सेक्शन 17, 18, 19, 20 पढ़ो तो और क्लियर आ जाएगा. तो jurisdiction का हिसाब से आप एग्जीक्यूशन एप्लीकेशंस दूसरा कोर्ट में भी फाइल कर सकते हो. बट दिमाग में एक रखना बात,
दैट कोर्ट शुड हैव द पावर ऑफ एग्जीक्यूशन। सो सर इसमें क्या होता है, जो कोर्ट ने डिक्री पास किया वही कोर्ट में आप एप्लीकेशन करो और बोलो क्या मुझे एग्जीक्यूशन करना है, और ये एग्जीक्यूशन कहां करना है, मुझे आसनसोल में करना है, मुझे दुर्गापुर में नहीं करना है। नाउ ऑब्वियसली द दुर्गापुर में जो सिविल कोर्ट है विल आस्क फॉर व्हाट इज द रीजन व्हाई यू आर गोइंग टू आसनसोल एंड नॉट फाइलिंग हियर द एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन इन दुर्गापुर। Obviously proper reason should be given. Now who shall give the proper reason? Obviously the decree holder, जिसको फेवर में डिक्री मिला है, तो डिक्री होल्डर कोर्ट में वैसे ही बोलेगा क्या दिस जजमेंट डेटर इज हैविंग सम प्रॉपर्टी इन आसनसोल, इट विल बी बेटर इफ द अटैचमेंट इज डन इन दुर्गापुर, sorry, in Asansol. So it is wise and better if you transfer the execution application to any court which is in the same hierarchy in Asansol. तो लर्नेड सिविल जज जूनियर डिवीजन दुर्गापुर में जो मैटर चल रहा था, डिक्री पास किया, वैसे ही एक कोर्ट तो आसनसोल में भी होगा, वैसा ही सेम हायरार्की सेम कैटेगरी में द मैटर कैन बी ट्रांसफर्ड इन सेंस फॉर एग्जीक्यूशन। तो आसनसोल का जो कोर्ट है वो आराम से वो डिक्री को एग्जीक्यूट कर सकता है, भलाई उन्होंने डिक्री नहीं पास किया, आसनसोल कोर्ट हैज नॉट पास द डिक्री वाज पास्ड बाय दुर्गापुर सिविल कोर्ट। सो आसनसोल का जो सिविल कोर्ट है इट कैन इजीली एग्जीक्यूट द डिक्री, बट उसका कुछ तरीका होता है हाउ टू ट्रांसफर द डिक्री। सो सेक्शन 38 बोला है कोर्ट बाय व्हिच डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड। सो अ डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड बाय द कोर्ट व्हिच हैज पास्ड इट, और इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू सम अदर कोर्ट वेयर सम जुरिसडिक्शनल पॉइंट इज गेटिंग सेटिस्फाइड। जहां जुरिसडिक्शन मिलता है उस कोर्ट भी कर सकता है, दूसरा कोर्ट भी कर सकता है, राइट। सो सेक्शन 38 डिफाइंस कोर्ट व्हिच पास द डिक्री। तो कोर्ट व्हिच पास द डिक्री, इसका जो लैंग्वेज है वेयर द डिक्री इज टू बी एग्जीक्यूटेड हैज बीन पास्ड इन द एक्सेस ऑफ एपिलेट जुरिसडिक्शन, द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। सपोज टेक एन एग्जांपल, जैसे सूट में डिक्री पास होता है, मान लो उस सूट का डिक्री का अगेंस्ट में मान लो कोई भी एक पार्टी अपील में गया, तो एपिलेट कोर्ट भी तो ऑर्डर देता है ना, बट दैट ऑर्डर इज सेड टू बी एपिलेट डिक्री। नाउ सपोज टेक एन एग्जांपल, इफ द एपिलेट कोर्ट हैज पास्ड एन एपिलेट डिक्री, देन व्हिच कोर्ट कैन बी सेड एज द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस? जो लोअर कोर्ट है उसको ही बोलेगा दैट लोअर कोर्ट कैन आल्सो एग्जीक्यूट। सो एग्जीक्यूशन इज एन ऑप्शन। भलाई एपिलेट जुरिसडिक्शन, कोई एपिलेट कोर्ट ने डिक्री पास किया, आप एग्जीक्यूशन नीचे वाले कोर्ट में भी कर सकते हो। सो द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब क्या है, आप सबसे आगे फर्स्ट कहां मामला किया था? सर लर्नेड सिविल जज जूनियर डिवीजन इन माय एग्जांपल। सो इवन इफ अ डिक्री वाज पास्ड बाय लर्नेड सिविल जज जूनियर डिवीजन दुर्गापुर एंड द डिक्री वाज चैलेंज्ड बाय द डिफेंडेंट इन द फॉर्म ऑफ एन अपील बिफोर द एपिलेट कोर्ट, मान लो उस डिक्री को डिफेंडेंट ने चैलेंज किया एपिलेट कोर्ट में, एपिलेट कोर्ट में भी मैटर को देखा और एपिलेट डिक्री पास कर दिया, तो इवन इफ द एपिलेट डिक्री हैज पास्ड in favor of the plaintiff, again the plaintiff has the option to again go to the lower court which has passed the decree for the purpose of executing the decree, so कुछ पॉइंट्स में लिख देता हूं सेक्शन 37 का, फटाफट लिख लो। सेक्शन 37 का जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है दैट हैज टू बी read very seriously. Okay, see section 37. Section 37. Section 37 defines the expression court which passed a decree. Court which passed a decree, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन आता है कौन सा कोर्ट डिक्री पास किया और कौन सा कोर्ट एग्जीक्यूट कर सकता है। बात तो कंफ्यूजन उधर ही आता है कौन सा कोर्ट एग्जीक्यूशन कर सकता है। अरे भाई, जो कोर्ट डिक्री पास किया वो तो एग्जीक्यूशन कर सकता है, बट दूसरा कोर्ट भी कर सकता है जहां जुरिसडिक्शन बनता है, बस। सो द सेक्शन एनलार्जेस द स्कोप ऑफ द एक्सप्रेशन कोर्ट व्हिच पास्ड अ डिक्री विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेटर फैसिलिटीज टू द डिक्री होल्डर। तो जैसे मान लो डिक्री होल्डर के पास ऑप्शन आ गया, क्या वो ए कोर्ट में भी फाइल कर सकता है एग्जीक्यूशन, बी कोर्ट में भी फाइल कर सकता है एग्जीक्यूशन, सी कोर्ट में भी फाइल कर सकता है एग्जीक्यूशन अगेंस्ट द सेम जजमेंट डेटर। मान लो दुर्गापुर में कुछ ट्रांजैक्शन हुआ था प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में, और डिफेंडेंट मान लो कुछ कंट्रवेंशन किया टर्म्स एंड एग्रीमेंट, और प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट का अगेंस्ट में सूट फाइल करके डिक्री भी ले लिया। सो इट्स नॉट कंपल्सरी दैट यू हैव टू एग्जीक्यूट द डिक्री इन दुर्गापुर, यू कैन टेक सम अदर ऑप्शंस।
options regarding, you can choose some other courts for execution, but that court should have some satisfactory points for that jurisdiction. मान लो जजमेंट डेटर जो है इस केस में उसके घर कोई दूसरा जगह है, सो सेक्शन 37 इज सेइंग डिक्री होल्डर को ऑप्शन मिलता है, पहला बात। नेक्स्ट इट इज सेइंग दैट द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस which actually pass the decree, तो मेरा पिछला एग्जाम्पल में कौन सा वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है सर? वो दुर्गापुर वाला कोर्ट, बिकॉज दैट कोर्ट was the first to entertain that particular suit. Next, the court of first instance in case of appellate decree 3 नंबर पॉइंट किया है, if the court, लिखते जाओ, if the court of first instance cease to exist, the court which would have हो सकता है which would have jurisdiction to try the suit. ऐसा हो सकता है, मान लो जो कोर्ट ने डिक्री पास किया है वो कोर्ट अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, बट उसके जगह में कोई दूसरा तो कोर्ट हुआ है, एग्जिस्टेंस में है ना, so that court can also execute the decree. So where the court of first instance has ceased to have jurisdiction to execute the decree, the court which at the time of execution would have jurisdiction to try the suit. So it doesn't matter even if a particular court which passed the decree is now no more, हो सकता है cease to exist, अभी नहीं है वो कोर्ट, बट उसके जगह में कोई दूसरा कोर्ट है और दूसरा कोर्ट का होने का कारण जुरिस्डिक्शन पहले बन सकता था, तो दैट कोर्ट कैन ऑल्सो एग्जीक्यूट द डिक्री। दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 37। अभी जो सेक्शन 38, दैट्स अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो नया पेज न्यू बोर्ड में आता हूं, न्यू बोर्ड, यस, ऑल अबाउट सेक्शन 38। सेक्शन 38 सीधा बोल दिया क्या? A decree may be executed either by the court which passed it, जो कोर्ट ने डिक्री पास किया, so decree may be executed by the court which passed the decree, एक तो ये है exactly। नेक्स्ट आएगा or by the court to which it is sent for execution। हो सकता है जो कोर्ट वो मैटर को ट्रायल नहीं किया है, जो कोर्ट वो मैटर को पहले से एंटरटेन नहीं किया है, बट बाद में एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन को एनफोर्स कर रहा है, yes, it can be done। It is not necessary always that a court which passed the decree should always execute the decree. Yes, it is better because ये हो सकता है, जैसे मान लो जो कोर्ट पहले से ये केस को देख रहा है, हो सकता है उसका एग्जीक्यूशन वो और भी अच्छा देख सकता है, क्योंकि जैसे मान लो मैं आपको पहले से जानता हूं, तो आपको पहचानने में मेरा कोई गलती नहीं होगा बाद में, सही है ना? तो बाकी का बैटर में मान लो कोई कोर्ट कोई दूसरा एरिया में है और उधर में वो एग्जीक्यूशन को ट्रांसफर किया, तो the court which is now receiving that execution application will not be surprised actually, but a meaning of होता है ना जो ओवरवेलमिंग, एक नया एग्जीक्यूशन मैटर है, 20 साल से एक केस चल रहा था एक दूसरा कोर्ट में,
आज का उसका एग्जीक्यूशन मेरे कोर्ट में आया है, सो दैट कोर्ट हैज टू मेक अ प्रीवियस ऑर्डर्स एंड डिक्रीज। तो उसके साथ साथ कौन सा क्या एग्जीक्यूशन करना है, क्या अटैचमेंट करना है, क्या सेल करना है, किसको अरेस्ट करना है, किसको डिटेंशन करना है, आई एम टॉकिंग अबाउट द मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन। तो जो मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन है, वो मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन shall be intimated by the court which has passed the decree to the court where the decree is sent। तो जो कोर्ट ने डिक्री पास किया, प्लेंटिफ उधर एप्लीकेशन किया, क्या मुझे एग्जीक्यूशन करना है बट आपका कोर्ट में नहीं करना है, उस कोर्ट में करना है, क्योंकि उस कोर्ट में जजमेंट डेटर के कुछ प्रॉपर्टी है। देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ जजमेंट डेटर व्हिच इज सिचुएटेड इन सम अदर जुरिस्डिक्शन। बेटर ट्रांसफर द एग्जीक्यूशन मैटर टू दैट कोर्ट। So obviously the court which is transferring the execution matter should record the reasons। वो तो कारण लिखेगा, हाँ बिकॉज जजमेंट डेटर का प्रॉपर्टी उधर है, ये ऐसा कुछ प्लेंटिफ का मतलब स्टेटमेंट है, प्लेंटिफ चाहता है क्या डिक्री को एग्जीक्यूशन करना कोई दूसरा कोर्ट में, सो दैट पर्टिकुलर कोर्ट शैल हैव द पावर टू गो फॉर जुरिस्डिक्शन। सो दुर्गापुर कोर्ट में मान लो केस फाइल किया, डिक्री भी हो गया, बट the decree is now getting executed in some other court, that can be done, right? So where the court of first instance has ceased to exist or ceased to have jurisdiction to execute the decree can be executed by the court which at the time of execution would have been there। देखो सेक्शन 39 to 42, section 39 to 42, coming with the discussion again, section 39 to 42, section 39 to 42, this is all about what? This is all about transfer of decree for execution। देखो एक सिविल सूट चल रहा था ए वर्सेस बी का अगेंस्ट में, और ये जो केस चल रहा था, मान लो दुर्गापुर का कोई लर्नेड सिविल जज का जुरिस्डिक्शन में ये मैटर चल रहा था। इधर में डिक्री दे दिया, नाउ द डिक्री होल्डर इज मिस्टर ए इज डिक्री होल्डर। नाउ डिक्री होल्डर हैज अ ऑप्शन whether he will carry the execution proceedings in the same court which passed the decree or in some other court। मान लो कोई अलग जुरिस्डिक्शन में, टेक एन एग्जांपल, कोई अलग जुरिस्डिक्शन में कुछ प्रॉपर्टी डिपेंडेंट का ऐसा है, एंड दिस कोर्ट इज, टेक एन एग्जांपल, दिस कोर्ट इज हावड़ा कोर्ट। ऐसा प्लेंटिफ का ऐसा विश्वास है, प्लेंटिफ ने कोर्ट को बोला, सर दिस एग्जीक्यूशन कैन बी बेटर फाइल्ड इन हावड़ा कोर्ट rather not to file before this Durgapur court, because if the execution is filed before Durgapur court, then it will be difficult for the Durgapur court for attaching those properties which are situated within the jurisdiction of a different court। सो जब जजमेंट डेटर का कुछ प्रॉपर्टी वगैरह कोई अलग जुरिस्डिक्शन में, और नहीं हो सकता ऐसे मान लो जजमेंट डेटर का कोई अलग जुरिस्डिक्शन में उसका कोई बिजनेस है, तो ये भी जुरिस्डिक्शन बनता है, सो द मैटर कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय मिस्टर ए आइदर इन दिस दुर्गापुर कोर्ट, आइदर इन दिस हावड़ा कोर्ट, नहीं तो मान लो ये बिजनेस मान लो बर्दवान कोर्ट में है, तो इस कोर्ट में भी एग्जीक्यूशन कर सकते हो, ऑप्शन आपके पास है, which will be better। so उसके हिसाब से जब आप कोर्ट को एप्लीकेशन करते हो फॉर द ट्रांसफर ऑफ द डिक्री फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन, द कोर्ट शुड टेक द रीजंस ऑन रिकॉर्ड दैट व्हाई सच डिक्री इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन, बिकॉज प्लेंटिफ ने एप्लीकेशन कर रहा है। सो लेट्स सी द कोर्ट व्हिच पास द डिक्री may on the application of the decree holder, may on the application, क्या बोला, डिक्री होल्डर का एप्लीकेशन, तो डिक्री होल्डर को एप्लीकेशन देना पड़ता है, क्योंकि उसको मानना है कोई दूसरा जुरिस्डिक्शन में फाइल होगा तो थोड़ा बेहतर होगा, दैट विल बी मच मोर बेटर देन टू फाइल
बिफोर द कोर्ट व्हिच हैज पास द डिक्री. सो डिक्री होल्डर एप्लीकेशन करेगा फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन इन सम अदर कोर्ट्स व्हिच इज हैविंग सम कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन. तो दूसरा कोर्ट का एक चीज तो सेटिस्फाई करना ही है. दूसरा कोर्ट में आपको मानना है एग्जीक्यूशन ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा अच्छा होगा. सो फॉर दैट यू हैव टू गिव द रीजन to the particular court which has passed the decree why you want for execution to some other in some other jurisdiction, why you want to execute the decree in some other jurisdiction. So proper reasons should be given and justification should be given to the court which passed the decree. जैसे मान लो I am the decree holder and I want the execution to be done in some other court. So in that particular court I must satisfy that the judgment debtor is having some property within that jurisdiction. It will be better if the execution case is being transferred to that particular court. एक कारण हो सकता है, if the person against whom the decree is passed is actually and voluntarily residing or carrying any business in some other jurisdiction. ये भी हो सकता है. If such person has not property within the limits of the jurisdiction of that court which has passed the decree. जो कोर्ट ने डिक्री पास किया उस लिमिट के अंदर जजमेंट डेटर का कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये भी एक कारण हो सकता है आप एग्जीक्यूशन को दूसरा जगह करना चाहते हो. इफ द डिक्री डायरेक्ट द सेल और इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ अदर जुरिस्डिक्शन, कोई दूसरा जुरिस्डिक्शन में आपका मान लो प्रॉपर्टी है और पैसा आपको नहीं मिलेगा, पैसा तभी मिलेगा जब उसका प्रॉपर्टी सेल होकर ऑक्शन होकर आपका डिक्री रियलाइज कर सकते हो. जैसे मान लो मैंने 10 लाख रुपया लोन दिया, वो मेरा 10 लाख रुपया चुना कर दिया. सो आई हैव टू रियलाइज द डिक्री, आई हैव टू रिकवर द अमाउंट. So for recovering the amount, I have to take the result of the execution proceedings, and it will be better if the execution is filed in some other court where the judgment debtor is having some interest or property और कुछ business वगैरह कर रहा है. So डिक्री ट्रांसफर भी हो सकता है, बट इसके लिए डिक्री होल्डर को एप्लीकेशंस करना होता है. और एक बात जो इंपॉर्टेंट है, द कोर्ट बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 151 हैज आल्सो suo motu power to send the decree for execution in some other court. बात यह है क्या, जब भी कोई दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर होता है, reasons to be recorded by the court which passed the decree, because the reason that statement will also be accompanied with the execution application. क्योंकि मान लो I am the judge and I am sitting in some other jurisdiction. I received an application that a matter has been transferred. I will first see what are the reasons behind such transfer. तो मेरा कोर्ट को एक एप्लीकेशन आया है, बट वो केस मेरे कोर्ट में नहीं था, पहले कोई दूसरा कोर्ट में चल रहा था. So the decree was passed by some other court and I am now the court which received the decree which is needed to be executed by means of some modes of execution. तो मुझे वो रीजन देखना है. So the previous court should pass the statement of reasons recorded why the matter has been sent for execution, right? अभी सेक्शन 42 में आप चले जाओगे. सेक्शन 42 में कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स भी दिया है. सी इंपॉर्टेंट पावर में क्या दिया है, कुछ पावर्स जैसे व्हाट आर द पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट. अभी बात है क्या, जो कोर्ट ने मैटर पहले से देख रहा है उस कोर्ट का तो उस केस का जानकारी ज्यादा अच्छा होना चाहिए. बट जब भी एक दूसरा कोर्ट में जाता है, दैट मैटर हैज टू बी रिवाइज्ड बाय दैट पर्टिकुलर कोर्ट. नाउ द मैटर इज दैट द कोर्ट व्हिच इज एग्जीक्यूटिंग द डिक्री हैज इमेंस पावर. अभी कौन सा पावर है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. काइंडली इरेज ऑल दिस थिंग्स. Let us continue. What are the powers of the execution court? देखो एग्जीक्यूशन कोर्ट का पावर आपको मैं बता देता हूं. उसका पावर जो होता है, इन शॉर्ट आई एम सेइंग, execution court can give an order for sale and delivery. It can also order for attachment of property. It can also give an order for arrest and detention and other powers under the CPC and other powers
अदर पावर्स अंडर सीपीसी। देखो एग्जीक्यूशन का पावर का एग्जीक्यूशन कोड का पावर कितना वैरायटीज है। वो सेल भी कर सकता है, ऑक्शन भी कर सकता है, डिलीवरी कर सकता है, किसी का प्रॉपर्टी अटैच भी कर सकता है, किसी का अरेस्ट भी हो सकता है, उसका भी ऑर्डर दे सकता है। कभी आपने सुना है सिविल केस में किसी को जेल जाना? नहीं सुना है, बट होता है। कोई व्यक्ति मान लो जो एग्जीक्यूशन को रोकना चाहता है, एनी पर्सन हु इज ट्राइंग टू ऑब्स्ट्रक्ट द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, एनी पर्सन हु इज ट्राइंग टू डिले द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स may be arrested, maybe his property may be attached. So the court executing a decree sent to it shall have the same power in executing such decree as it would have been passed by itself. इसका मतलब क्या है? कोई दूसरा कोर्ट डिक्री पास किया और मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं, the court which is now executing the decree shall think that जो डिक्री मैं अभी एग्जीक्यूट कर रहा हूं वो डिक्री मैंने ही पास किया, ऐसा सोच लेगा, डीम्ड डिस्पाइट द फैक्ट द डिक्री वाज पास्ड बाय सम अदर कोर्ट, बट व्हाइल एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री all powers of the execution court should be exercised in the manner as if the decree has been passed by that court. वो ऐसा सोचेगा जब एक डिक्री को एग्जीक्यूशन कर रहा है, दैट एग्जीक्यूशन कोर्ट कैन थिंक दैट द डिक्री हैज बीन पास्ड बाय मी ओनली। वो ऐसा नहीं सोचेगा कि दूसरा कोर्ट का डिक्री है मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं, वो ऐसा सोचेगा द डिक्री इज पास्ड बाय मी एंड नो क्वेश्चन कैन बी रेज्ड, नो ऑब्जेक्शन कैन बी रेज्ड। सो ऑब्वियसली when a matter is getting transferred for the purpose of execution in some other court, the same powers are vested in that particular court as if the decree had been passed by that court only. So all persons who are disobeying and obstructing the manner of execution can be arrested, can be detained. तो ये तो होता ही है. So the provisions of section 39 are however not mandatory. Mandatory तो नहीं है, and the court has discretion in the matter which will be judicially exercised by it. So it is the option of the decree holder where to file the matter. Where to file the matter. देखो execution आपका foreign decree भी हो सकता है. Section 43 to 44A, section 43 to 44A ये कहता है क्या? एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन डिक्रीज इन इंडिया. कोई फॉरेन कोर्ट ने डिक्री पास किया और उसका एग्जीक्यूशन इंडिया में हो रहा है, हो सकता है सर, कंडीशंस तो है. ऑब्वियसली दैट कोर्ट शुड हैव द कोर्ट शुड हैव कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन. तो जुरिस्डिक्शन चाहिए. मान लो कोई बाहर वाला कोर्ट, मान लो कोई अमेरिका का कोर्ट एक डिक्री पास किया, कैन द डिक्री बी एग्जीक्यूटेड इन इंडिया? यस, इट कैन बी डन, बट फॉर दैट जैसे हम लोग फॉरेन जजमेंट में किया था सेक्शन 13-14, जो कंडीशंस है वो कंडीशंस को आपको फुलफिल करना है. सो अल्टीमेटली आई कैन से द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन इज ओनली फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द डिक्री. जब सीधा उंगली से घी निकालता नहीं है, आपको उल्टा घुमाना है. जब सीधा डिक्री से डिफेंडेंट कंप्लायंस नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या है? ये तो डिक्री को कंट्रावेन कर रहा है, डिक्री को नहीं मान रहा है. सो उसको मानना तो जरूरी है, बट मानने के लिए उसको थोड़ा कुछ और भी एक्स्ट्रा सबक सिखाना है, वही है एग्जीक्यूशन. तो एग्जीक्यूशन में आपको कुछ डिक्री नहीं मिलता है, बट एग्जीक्यूशन में जो डिक्री आपको मिला उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है. बात समझो क्या मैं बोल रहा हूं. इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स अ डिक्री इज एक्चुअली एनफोर्स्ड. वॉट एवर डिक्री हैज बीन पास्ड बाय द प्रीवियस कोर्ट, दैट हैज टू बी रियलाइज्ड, दैट हैज टू बी मेड इफेक्टिव, दैट हैज टू बी एनफोर्स्ड बाय द एग्जीक्यूशन कोर्ट. राइट. Abhi, now coming to modes of execution, another important thing, modes of execution. That's an important, it's important chapter in entire CPC. And इसका जो orders है ना,
अभी सेक्शन 37 से आपको 55 जो वाला सेक्शन से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ऑर्डर 21 तो पूरा इंपॉर्टेंट है, बट विल कवर द topics as per the syllabus given. We'll cover the topics as per syllabus given. So order 21 is all about execution proceedings. Execution proceedings. And section 35 से शुरू हो जाता है what? All about executions. Now the code has, the civil procedure code has laid down various modes of execution. Now, after the decree holder files an application for execution of the decree, the executing court can enforce execution. जब तक आप execution के लिए application नहीं फाइल कर रहे हो, execution court क्यों execute करेगा? So decree holder has to file an application for the execution of the decree. तो जो डिक्री पास किया कोर्ट ने, जैसे मान लो एक डिक्री कोर्ट ने दिया जिसमें मिस्टर वाई को बोल रहा है मिस्टर वाई इज डायरेक्टेड टू पे एन अमाउंट ऑफ ₹6 lakh टुगेदर विद इंटरेस्ट टू मिस्टर वाई। 6 लाख का पेमेंट भी बोल दिया, क्या आपको एक बार में नहीं देना है, आपको इंस्टॉलमेंट में देना है, ऐसा बोल दिया। 1 लाख करके बोल दिया, 1 लाख करके बोल दिया। मैटर इज डिक्री हैज बीन पास इन फेवर ऑफ द डिक्री होल्डर। नाउ डू यू थिंक दैट द डिफेंडेंट विल कंप्लाई? चलो कंप्लाई कर लिया तो बहुत अच्छा बात है, नहीं कंप्लाई किया तो आपको एग्जीक्यूशन में जाना है। तो वो डिक्री जो दिया, इस डिक्री को आपको कैसे भी आपको एनफोर्स करना है और सेटिस्फैक्शन करना है। तो डिक्री हैज टू बी एग्जीक्यूटेड। जब तक आप एग्जीक्यूशन में नहीं जाते हो, आपका कोई रास्ता ही नहीं निकलता है। तो सर बात है क्या, एग्जीक्यूशन करने का तरीका क्या है? सो लेट अस सी द मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन। So by these modes of executions, we know that a decree holder has variety of modes of execution. अभी फर्स्ट मोड जो है आपका मूवेबल प्रॉपर्टी का डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट कैटेगरी है। ओके, सेक्शन 51 इन ब्रैकेट ए डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी से डील होता है। नेक्स्ट, जब कोई प्रॉपर्टी का अटैचमेंट का बारे में बोलता है, सो अटैचमेंट इज ऑल्सो अ मोड ऑफ एग्जीक्यूशन। अटैचमेंट एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी, दिस इज मेंशन इन सेक्शन 51B। नेक्स्ट कम्स आपका अरेस्ट एंड डिटेंशन, दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अरेस्ट एंड डिटेंशन, सेक्शन 51C। नेक्स्ट आपका ये भी आता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, सेक्शन 51D। देखो, आई एम जस्ट गिविंग सम एग्जांपल्स कैसे कैसे मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। देखो, पार्टीशन भी एक तरीका होता है मोड्स ऑफ पार्टीशन इज ऑल्सो a mode of execution. Now the thing is that whenever a civil court is passing any decree, the decree can be two types. In many cases it has been held that the court can pass two decrees. One is preliminary and final. In the preliminary decree there is no final disposition of suit, क्योंकि that preliminary decree has to be carried on to such a state that final decision can be obtained.
I mean to say that when a case is filed before a civil court, a decree can be given in the sense of preliminary decree, but preliminary decree does not itself end the suit. It means that the suit is to be continued. The suit is to be continued in order to obtain the final decree. In order to obtain the final decree. जैसे मान लो सूट फॉर पार्टीशन में देखो, कोर्ट आपको पार्टीशन का ऑर्डर दे दिया. सपोज ए बी सी डी आर द पार्टीज, दोज हु वांट अ पार्टीशन, दोज हु वांट अ पार्टीशन इन द प्रॉपर्टी. ए बी इज द प्लेंटिफ, सी डी इज द डिफेंडेंट. इन लोग पार्टीशन मांगा है कोर्ट से, तो कोर्ट ने पार्टीशन का ऑर्डर दे दिया, तो पार्टीशन का डिक्री भी दे दिया. कोर्ट ने पार्टीशन का डिक्री भी दे दिया, बट इसका मतलब नहीं है आपको डिक्री मिल गया. डिक्री को कोई एग्जीक्यूट करना है, राइट? तो ऐसा हो सकता है, मान लो सीडी बोल रहा है वी डोंट वांट पार्टीशन, ए बी बोल रहा है वी वांट पार्टीशन. ए बी सी डी, दे आर 4 brothers and they are having a property which is undivided. अभी तक उसमें पार्टीशन कुछ नहीं हुआ, रोज झगड़ा होता है. सी डी बोल रहा है क्या, वी डोंट वांट पार्टीशन, ए बी बोल रहा है वी वांट पार्टीशन. So in this case, AB has filed a suit for partition. When the decree is obtained by the plaintiff that the suit needs to be partitioned, that doesn't mean partition हो गया. उस partition को कोई realize करना है. मान लो CD objection भी दे सकता है, no, we don't agree with this partition decree. In that case, you don't have option. AB has to file an execution proceedings. क्योंकि एग्जीक्यूशन नहीं करेगा तो अल्टीमेटली पार्टीशन डिक्री को रियलाइज नहीं कर पाओगे. यू हैव टू रियलाइज द डिक्री. वो डिक्री को आपको हकीकत में प्रैक्टिकली में आपको सोचना भी है. सो फाइनल डिक्री इज नीडेड. सो अरेस्ट एंड डिटेंशन हो सकता है, अटैचमेंट भी हो सकता है. मान लो सीडी का कोई दूसरा घर है, उसका प्रॉपर्टी अटैचमेंट भी हो सकता है. क्यों? बिकॉज सी एंड डी इज विद द इंटेंशन टू ऑब्स्ट्रक्ट द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स. उसको रोकने के लिए कोर्ट ये तरीका ले सकता है. सो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी. तो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी का जब बात आता है, दैट्स मे बी मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी. सो वेयर द डिक्री इज फॉर अ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, वेयर द डिक्री इज फॉर अ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, इट मे बी एग्जीक्यूटेड बाय व्हाट? प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हो. इट मे बी सीज्ड. जैसे अब डिलीवरी का भी अंदर बहुत तरीका हो सकता है. एक हो सकता है सीज, एक हो सकता है डिलीवरी, एक हो सकता है आपका डिटेंशन. सो व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट इन रिगार्डिंग अ मूवेबल प्रॉपर्टी and the case has been extended to execution proceedings, even after the decree has been passed, the decree was not realized by the plaintiff. The plaintiff has demanded for execution of such decree. Either the plaintiff can claim for delivery of the immovable property, or sale of the movable property, or delivery of the movable property, or detention of the movable property. हो सकता है जो प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट हो रहा है वो तो मूवेबल प्रॉपर्टी है. So the decree holder can claim for the sale of the delivery property, can claim for attachment of the movable property or delivery of that movable property. In case of immovable property, execution करना है, क्योंकि execution जब सेल भी हो सकता है, but जब आप execution करते हो, you have to see the nature of the case, whether particular civil suit is related to a movable property or immovable property, whether the particular civil suit is related to movable property or immovable property. If it is related to movable property, then section 51A should be read together with all other modes of executions, like seize हो सकता है, delivery हो सकता है, detention हो सकता है, attachment भी हो सकता है. Attachment can also be done. Attachment भी हो सकता है. So the what specific movable property do not include money here. इसमें पैसा का बारे में नहीं बोल रहा है. Therefore a decree of money cannot be executed under rule 31. तो rule 31 में जो बोल रहा है is talking about delivery of movable property. Rule 31. In your
execution chapter, see order 21 and locate rule 31. Rule 31 में बोल दिया that a specific movable property can be sold out, can be attached, can be detained, but that movable property should not include money. It includes every movable property but except money है. ओके, बिकॉज जब मनी का केस आता है रूल 31 अप्लाई नहीं हो सकता है. रूल 31 अप्लाई बिकॉज पैसा डिलीवरी नहीं होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी डिलीवरी होता है. जब पैसे के बारे में हो रहा है उसका एग्जीक्यूशन अलग है. नेक्स्ट, इन द केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी इमूवेबल नेचर का है, इन दैट केस रूल 35 एंड रूल 36 शुड बी रेड. रूल 35 and 36 is relating to immovable property. 31 है movable property. Okay. So rule 35 and rule 36 provides a mode of executing decrees for possession of immovable property. Possession of immovable property to the decree holder. Suppose take an example. Tenant and landlord के बीच में झगड़ा है. Tenant किराया नहीं देता है ठीक ठाक टाइम में. The tenant is not paying the amount as per the time and schedule. The tenant has not paid the amount of rent for a consecutive period of more than 5 years, 4 years, 1 year. Can the plaintiff file a case against the, plaintiff here, can the landlord file a case against the tenant for eviction of the tenant? Yes, there is a strong ground where the landlord can file a civil suit against the tenant for the purpose of eviction. उसको उठाने के लिए, अभी उठाने के लिए कोर्ट ने बोल दिया टेनेंट अब घर छोड़ दो, टेनेंट का प्रीमाइसेस वैकेंट कर दो. वो ऐसे ही क्या मान लेगा? कभी नहीं मानेगा. तो लैंडलॉर्ड को क्या स्टेप्स लेना होगा? अगेन एग्जीक्यूशन. उसको निकालने के लिए पुलिस फोर्स भी वो अप्लाई, पुलिस फोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है कि टेनेंट इज वेरी एडमेंट इन नेचर, टेनेंट will not comply the decree, it is better to execute the decree and let him oust from the, oust का मतलब क्या है? निकालना, oust from the property, and let him oust from the property. So even if you obtain the decree that the possession should be returned back to the landlord, the tenant will not easily कंप्लाई विद द डिक्री. टेनेंट तो नहीं मानेगा तो टेनेंट को उठाना पड़ेगा. तो उठाने के लिए आपको मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन फिर से आना पड़ेगा. उसका कोई प्रॉपर्टी देखो अटैचमेंट हो सकता है, अभी नहीं होगा तो उसका अरेस्ट भी हो सकता है. मान लो एग्जीक्यूशन करने आया तो कोई मतलब टेनेंट रोक दिया एग्जीक्यूशन को, उसका डिटेंशन भी हो सकता है. सो दोज पर्सन हु इज डिजर्विंग द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स कैन ऑल्सो बी अरेस्टेड एंड डिटेन. सो इधर का जो केस है, टेनेंट मान लो डिक्री को नहीं मान रहा है, लैंडलॉर्ड कैन कंटिन्यू एन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द टेनेंट, एंड इन फर्दरेंस ऑफ द प्रोसीडिंग्स द लैंडलॉर्ड बीइंग द डिक्री होल्डर कैन अप्लाई फॉर डिफरेंट मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन. उसको घर से निकालने के लिए, उसको पोजीशन से निकालने के लिए वो कोर्ट के पास अप्लाई कर सकते हैं फॉर अटैचमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी. कोई दूसरा कोर्ट में मान लो एग्जीक्यूशन किया, लैंडलॉर्ड को पता चला कि टेनेंट का सही में कुछ घर है, टेनेंट का घर प्रॉपर्टी कोई अलग जुरिस्डिक्शन में है, बट डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट ही इज कंपेलिंग द लैंडलॉर्ड नॉट टू रिमूव, और जबरदस्ती रह रहा है. जब कोर्ट ने डिक्री दे दिया टेनेंट तुम निकाल जाओ, tenant should leave the premises, tenant should vacate the premises within this date, but still the tenant is not complying. In that case modes of execution is very much important. So immovable property का भी होता है. Next coming to attachment and sale of property. अभी ये attachment जो है, let us see what is attachment. See, in case of attachment, property liable to attachment. Now obviously when there is a case of attachment, take an example.
ये जो मेरा कपड़ा है ये कभी अटैच नहीं हो सकता बिकॉज इट्स अ वेयरिंग। बर्तन आप जो खाते हो वो अटैच नहीं हो सकता। सो सर अटैचमेंट क्या हो सकता है? ये आपका कौन सा सेक्शन बोला? सेक्शन 60 ने बोला। सेक्शन 60 इज टॉकिंग अबाउट अटैचमेंट। Section 60 is talking about attachment. Now, what are the items which can be held for attachment by the court? Let us see. Section 60 is saying that attachment, attachment, attachment of property, attachment of property, and sale in execution. एंड सेल इन एग्जीक्यूशन, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड सेल इन एग्जीक्यूशन। तो ये अटैचमेंट किस किस के ऊपर हो सकता है? देखो लैंड, ओके, नेक्स्ट मनी, नेक्स्ट बैंक नोट्स, नेक्स्ट आपका कोई मान लो आपने कंपनी का कुछ शेयर खरीद लिया तो शेयर्स इन कॉर्पोरेशन, शेयर्स इन कॉर्पोरेशन, bonds, government securities, next हुंडी, हुंडी होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। हुंडीज आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जाओ, हुंडी का मतलब है बिल ऑफ एक्सचेंज। हुंडीज, प्रॉमिसरी नोट्स एक्सेट्रा। आपका बैंक अकाउंट ये भी अटैच हो सकता है, आपका ज्वेलरी ये भी अटैच हो सकता है। बट सर क्या हो नहीं सकता? जो आपका पर्सनल चीजें हैं वो नहीं हो सकता है। कैसे सर? पर्सनल तो मेरा घर भी है। हाँ, आपका लैंड, तो लैंड, आपका जमीन, आपका प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकता है। प्रॉपर्टी, आपका कोई सॉलिड प्रॉपर्टी, आपका एक सॉलिड बिल्डिंग है, उस प्रॉपर्टी में आप रहते हो, वो भी अटैच हो सकता है। बट कौन सा चीजें अटैच नहीं होता है वो पॉइंट्स में बोल दिया। एक होता है वेयरिंग अपैरल, कुकिंग यूटेंसिल्स, जिस बर्तन में आप खाते हो, खाना पकाते हो। नेक्स्ट बेड्स एंड बेडिंग्स, ये सब अटैचमेंट नहीं करेगा कोर्ट, क्योंकि इसमें कोई मतलब ही नहीं आता है। व्हाई शुड कोर्ट शुड अटैच? कोर्ट विल ऑलवेज अटैच ऑन दोज प्रॉपर्टीज विच हैज सम वैल्यूज। लैंड का आपका वैल्यू है, प्रॉपर्टी का आपका वैल्यू है, बैंक नोट्स, बैंक अकाउंट्स, शेयर्स इन कॉर्पोरेशन, ये आपका अटैच हो सकता है। नेक्स्ट अ मेयर राइट टू सू फॉर डैमेजेस, एनी राइट ऑफ पर्सनल सर्विस, टूल्स एंड एडिशंस, ये वगैरह आपका अटैचमेंट नहीं हो सकता है। प्लीज गो थ्रू सेक्शन 16, यू विल गेट अ डिटेल लिस्ट ऑफ दैट। कौन सा प्रॉपर्टी अटैच हो सकता है, कौन सा प्रॉपर्टी अटैच नहीं होता है। बिकॉज अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इज अ मोड ऑफ एग्जीक्यूशन। जब आप सीधे तरह नहीं मानते हो तो आप अटैचमेंट के हिसाब से आप मान सकते हो, जब आप सीधे तरह नहीं मानते हो तो आप अटैचमेंट की तरह मान सकते हो। इसका मतलब क्या है? जब आप सुनते नहीं हो, आपको सुनाना पड़ता है। दैट इज when you are not obeying the decree, then execution will make you obey the decree. तो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स का ये है प्रॉपर्टी कौन सा लायबल हो सकता है अटैचमेंट के लिए, राइट? सो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। सेक्शन 51 भी बोल रहा है क्या? इट एम्पावर्स द कोर्ट टू ऑर्डर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री बाय अटैचमेंट एंड सेल। अभी प्रॉपर्टी अटैच हो गया तो उस अटैचमेंट का अगेंस्ट में जजमेंट लेटर कैन मेक एन ऑब्जेक्शन दैट दिस प्रॉपर्टी शुड नॉट बी अटैच्ड। वो तो कर सकता है ये, बिकॉज द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इज हैविंग अ इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज वॉट एवर स्टेप्स आर बीइंग टेकन बाय द एग्जीक्यूशन कोर्ट, लाइक द डिफरेंट मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन, दैट कैन बी ऑब्जेक्टेड बाय द जजमेंट लेटर। नहीं, ये अटैच नहीं कर सकते हो, वो अटैच नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो मेरा पूरा सैलरी अटैच कर दिया, मेरा मुझे जो सैलरी मिलता है ना वो पूरा का पूरा अटैच कर दिया, देन सर खाना क्या खाऊंगा मैं? मेरे पास पैसा ही नहीं बचेगा। तो उसमें भी बोला क्या? लेट अस सी, सैलरी टू द एक्सटेंट ऑफ फर्स्ट 1000 रुपीज, सैलरी टू द एक्सटेंट ऑफ फर्स्ट 1000 रुपीज एंड 2/3 ऑफ द रिमाइंडर। पहले बोला फर्स्ट 1000 एंड 2/3 ऑफ द रिमाइंडर, ये आपका अटैचमेंट नहीं हो सकता है। बाकी का पैसा पूरा अटैचमेंट हो सकता है। 1/3 फर्स्ट 1000 रुपीज एंड 2/3 ऑफ द रिमाइंडर, आपका अटैचमेंट नहीं हो सकता। So this list should be properly read, because आप कुछ भी अटैचमेंट नहीं कर सकते हो, जो अटैचमेंट कर सकते हो उसमें बोला। नेक्स्ट, it is saying that the court is competent to attach the property if it is situated within the local limits of jurisdiction। अभी मान लो आपने
एग्जीक्यूशन फाइल किया। कहां फाइल किया? जिस कोर्ट ने डिक्री पास किया वही कोर्ट में आपने एग्जीक्यूशन फाइल किया, और जहां एग्जीक्यूशन फाइल किया जिस कोर्ट में, उस कोर्ट का लिमिट का अंदर में जजमेंट डेटा का कोई प्रॉपर्टी है, तो बहुत आसानी हो गया आपका। दैट विल बी lessening your burden, that will be making the execution proceedings more flexible and more fast, because आप अटैचमेंट चाहते हो, और क्या अटैचमेंट? उसका प्रॉपर्टी मान लो आई वांट टू रियलाइज माय डिक्री, एंड फॉर दैट आई एम filing an application before the court under order 21 for attachment of the property of judgment debtor which is lying within the jurisdiction of the court which has passed the decree। तो बहुत आसानी हो गया ना, जो कोर्ट ने डिक्री पास किया उस कोर्ट का लिमिट्स का अंदर में प्रॉपर्टी है, सो इट कैन बी अटैच्ड। सो अरेस्ट एंड डिटेंशन इज आल्सो अनदर इंपॉर्टेंट मोड। जब अरेस्ट एंड डिटेंशन का बात आता है, we talk about arrest and detention in cases which are related to payment of money. So arrest and detention is in section 51 bracket C. Arrest and detention is in section 51 bracket C. So it is for the decree holder to decide in which of the several modes he will execute the decree. Yes sir, ऐसा हो सकता है कभी डिक्री होल्डर एक से ज्यादा मोड्स को अप्लाई कर रहा है, हाँ हो सकता है। he wants arrest, he wants attachment, he wants sale of the property, no bar is there, the decree holder can apply for different modes of execution, but कोर्ट का भी एक डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट कौन सा परमिट करेगा कौन सा नहीं करेगा, बिकॉज कोर्ट बिलीव्स in the principles of natural justice, because if you want for attachment of any property, the judgment debtor will definitely come for objection against that attachment, the judgment debtor will come for release of such attachment। तो कोर्ट का एक डिस्क्रिप्शन काम करता है। so it is for the decree holder to decide in which of the several modes he will execute the decree। one of the such modes of executing is arrest and detention in civil prison। तो अरेस्ट एंड डिटेंशन का प्रोविजंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका अरेस्ट मतलब सिविल केस में अरेस्ट बहुत कम ही सुना देता है, बट एग्जीक्यूशन का मामले में अरेस्ट एंड डिटेंशन इज अ वेरी कॉमन थिंग। द प्रोविजन लेस डाउन दैट वेयर अ डिक्री इज फॉर पेमेंट ऑफ मनी। मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, ये अरेस्ट एंड डिटेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कौन सा सिविल सूट में? पेमेंट ऑफ मनी रिलेटेड, पेमेंट ऑफ मनी और सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी। सो द प्रोविजन लेस डाउन दैट वेयर द डिक्री इज फॉर पेमेंट ऑफ मनी, एग्जीक्यूशन बाय डिटेंशन इन सिविल प्रिजन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मोड्स। क्योंकि जेल को तो सब जेल का नाम सुन, मतलब सिविल प्रिजन जेल का नाम सुन के एटलीस्ट जजमेंट थोड़ा भी डर तो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक पैसा पेमेंट भी कर सकता है। देखो अरेस्ट एंड डिटेंशन इज टू बी एक्सरसाइज्ड, अरेस्ट एंड डिटेंशन इज टू बी एक्सरसाइज्ड as a mode of execution by the court when satisfactory reason is given by the decree holder। Decree holder is praying for arrest of the judgment debtor, but for that the decree holder has to establish before that court proper satisfactory reason why he needs such order, that order relates to arrest and detention। तो ऐसा हो सकता है डिक्री होल्डर का ऐसा कुछ मानना है क्या जजमेंट डेटर इज ट्राइंग टू एब्सकॉन्ड फ्रॉम दैट प्लेस, जजमेंट डेटर इज ट्राइंग टू सेल आउट हिज प्रॉपर्टी और रिमूव हिज प्रॉपर्टी और एलियनेट हिज प्रॉपर्टी, भाग जाने का कोशिश कर रहा है, आउटसाइड इंडिया भी हो सकता है, लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन से बाहर जा सकता है, तो इसके कारण अरेस्ट डिटेंशन हो सकता है। जैसे ऐसे भी हो सकता है डिक्री होल्डर का ऐसा मानना है क्या, दैट द जजमेंट डेटर डज नॉट हैव एनी इंटेंशन टू रिटर्न द मनी बैक, सेटिस्फैक्टरी रीजन दोगे तभी ये अरेस्ट एंड डिटेंशन का प्रोविजंस जो सीपीसी में है वो कामयाब होगा। ऐसा वैसा आपका अरेस्ट सिविल कोर्ट ऑर्डर नहीं दे सकता है।
So the provisions lays down that where the decree is for the payment of money, execution by detention in civil prison should not be ordered unless after giving the judgment debtor an opportunity. Judgment debtor को एक opportunity देगा to know the reason why such order should not be passed. So that the judgment debtor is with the object of obstructing or delaying the execution proceedings. मैंने क्या बोला, अरेस्ट एंड डिटेंशन का प्रोविजन तभी होता है जब ऐसा मानना है डिक्री होल्डर का, क्या कोर्ट को भी लग रहा है, क्या सपोज टेक एन एग्जांपल, with the intention to obstruct or delay proceedings, ओके नेक्स्ट हो सकता है इज लाइकली टू एब्सकॉन्ड, भागने का उसका बहुत कोशिश है, जजमेंट कभी भी भाग सकता है, ऐसा डिक्री होल्डर का मानना है, कोर्ट को एप्लीकेशन किया, जल्दी से जल्दी उसका अरेस्ट करो नहीं तो भाग जाएगा, मेरा पैसा जो था सब चूना लग जाएगा, मेरा लिटिगेशन कॉस्ट जितना खर्चा हो वो भी चूना लग जाएगा. सो बेटर इट विल बी in the interest of justice, if that person is arrested, then such person can return the money. So execution here is very important. So he is likely to abscond, ऐसा मानना है, is likely to abscond. एक मिनट, इसमें थोड़ा गलती हो गया, is likely to abscond. Number 3, after institution of suit, dishonestly transferred what? Transferred or removed any part of his property, concealed or removed any portion of his property. तो अरेस्ट एंड डिटेंशन उतना मामूली मत समझो, आप सिविल कोड में एप्लीकेशंस कर रहे हो, बीइंग द डिक्री होल्डर, that there is an expectation that the judgment debtor is likely to abscond, that judgment debtor is likely to leave the local limits of the jurisdiction of this court, that the judgment debtor is with the intention to remove or sell his property to some other third party. तो उसका अरेस्ट, अटैचमेंट ऑफ अरेस्ट भी होना चाहिए और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी भी होना चाहिए, जितना जल्द से जल्दी उतना डिक्री होल्डर के लिए भलाई होगा. ऐसा कुछ कारण है तो आपका ये अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑर्डर दे सकता है. हाँ, द प्रोविजंस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन व्हिच इज मेंशन इन सेक्शन 51C एंड ऑल्सो इन सेक्शन 55. आपका सेक्शन 55 इसमें भी है, सेक्शन 55 भी पढ़ना है, उसमें पूरा प्रोसीड्यूर बोल दिया, एंड दिस प्रोसीड्यूर इज क्वाइट सिमिलर टू सीआरपीसी ऑल्सो. सीआरपीसी में आपने देखा सेक्शन 41 में अरेस्ट का बात है, वैसे सेक्शन 55 में सीपीसी में अरेस्ट के बारे में बोला है. सो द प्रोविजंस इन रिगार्ड टू अरेस्ट इज हैविंग अ सेम I mean you can say the same type of language is used in CRPC also, that what can be done actually, what can be done. Now अरेस्ट होने के लिए तो पुलिस ऑफिसर चाहिए, तो पुलिस ऑफिसर कैसे अरेस्ट कर सकता है? He cannot break the outer door before sunrise and after sunset जो होता है. So there are some conditions क्या है? Provided firstly that for the purpose of making an arrest under this section, for the purpose of arrest, in that case no dwelling house shall be entered after sunset before sunrise. तो अरेस्ट का भी जो प्रोसीड्योर है पूरा सेक्शन 41A सीआरपीसी में जो बोला, इट्स क्वाइट सिमिलर.
there is a similar language used in section 55 and in section what 41A. उसमें बोला आप देखो कैसे अरेस्ट होता है, अरेस्ट करने के लिए कुछ कुछ प्रोसीड्यूर है वो आपको मानना ही पड़ेगा. किसको मानना पड़ेगा? पुलिस ऑफिसर को मानना पड़ेगा. सो फर्स्टली बोला फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एन अरेस्ट एंड इफ यू आर अरेस्टिंग एनी पर्सन हु इज रिसाइडिंग इन अ ड्वेलिंग हाउस shall not be entered after sunset and before sunrise. Next, provided secondly that no outer door shall be broken. No outer door of a dwelling house shall be broken unless such dwelling house is in the occupancy of a judgment debtor. मान लो एक ही dwelling house में बहुत सारा आदमी रहता है, like apartments type. So it should not be broken until and unless there is a belief that the dwelling house is in the occupancy of judgment debtor. Okay. Next, provided that if there is any omen residing and that omen as per the customary rights does not appear before the public, तो उसके लिए अलग प्रोसीड्योर है. ये प्रोसीड्योर आप लोग देख लेना. अरेस्ट एंड डिटेंशन का प्रोसीड्योर इज क्वाइट सिमिलर एज गिवन इन सेक्शन 41A CRPC. तो अरेस्ट का जो प्रोसीड्योर है उसको मानना होगा. तो ये प्रोसीड्योर वगैरह छोड़ो, बट अरेस्ट हो सकता है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में. सो दिस इज द थर्ड मोड. नेक्स्ट कमिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर. हु इज द रिसीवर? अ रिसीवर इज अ पर्सन हु इज बीइंग अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ एनी you can say disputed property. So one of the modes of execution of decree is the appointment of receiver. That is mentioned in section 51D. Sorry, इधर जगह नहीं है. Section 51D is appointment of receiver. Plus you should also read order XL 40 is also saying about the receiver. So it is a mode of execution. Receiver is actually a person who is appointed by the court for the purpose of preservation of any disputed property, you can say. So one of the modes of execution of a decree is the appointment of a receiver. Execution by appointment of a receiver is known as equitable execution and is entirely at the discretion of the court. ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन कोर्ट के ऊपर है कि रिसीवर को अपॉइंट करेगा क्या नहीं. So the appointment of receiver in execution proceedings is considered to be an exceptional remedy. मान लो जो प्रॉपर्टी में कुछ मीन प्रॉफिट्स मिलता है, सपोज इफ अ प्रॉपर्टी इज प्रोवाइडिंग मीन प्रॉफिट्स, फॉर द पर्पस ऑफ preservation of those main profits, a receiver can be appointed. The decree holder, before restoring to this mode, must show that there is no effective remedy for obtaining relief by usual statutory mode of execution. So, जब कोई decree holder कोर्ट को अप्लाई किया for the appointment of a receiver, proper satisfactory ground should be shown to the court that why receiver is needed here. What is the need for keeping a reservoir here? So the decree holder should give the fullest satisfactory ground, fullest satisfactory reason to the court, because this is considered to be an exceptional remedy. So the decree holder, before restoring to this mode, must show that there is no effective remedy. अभी receiver appoint नहीं होगा तो बहुत दिक्कत हो सकता है. The case which has gone in favor of the decree holder might face some inconvenience in the execution proceedings. ऐसा कुछ मानना है डिक्री होल्डर को, क्या मैंने तो डिक्री तो मुझे मिला बट एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में रिसीवर को अपॉइंट नहीं किया तो बहुत बड़ा एक गलती हो जाएगा. मेरा डिक्री का जो मूल ऑब्जेक्टिव है वो डिफीट हो जाएगा. देयर विल बी अ डिफीट ऑफ जस्टिस फॉर द नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर. सो कोर्ट को आपको दिखाना पड़ेगा, यू हैव टू प्रोवाइड सैटिस्फैक्टरी रीजंस फॉर दैट, बिकॉज योर केस मे बी एन एक्सेप्शनल केस. For that you are asking for an exceptional remedy. So the court also must get satisfied that the appointment of a receiver is likely to benefit both the parties.
अभी रिसीवर अपॉइंट किया, खाली डिक्री होल्डर का ही भलाई हो रहा है? नो। सपोज टेक एन एग्जांपल, इफ देयर इज अ प्रॉपर्टी एंड इन दिस प्रॉपर्टी कल्टीवेशन इज डन, कल्टीवेशन होता है, ठीक है, पूरा का पूरा कल्टीवेशन होता है, और प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का बीच में झगड़ा चल रहा है किसका प्रॉपर्टी है, तो किसका प्रॉपर्टी मालूम आएगा तब तो ये प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है, बिकॉज these are main profits, the benefits which is coming out from the property. अभी जब तक मामला चलेगा 20 साल 25 साल, ये प्रॉपर्टी तो कभी भी पेरिश हो सकता है, खराब भी हो सकता है। तो मान लो एग्जीक्यूशन का टाइम में प्लेंटिफ को मानना है क्या, ये जो फसल हो रहा है, ये जो लैंड है, ये मेरा है और मेरा फसल खराब हो जाएगा, ये अप्लाइज टू द कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर।